جی آغاز کرتے ہیں کلاس کا۔ اس میں آپ نے ایمان والوں کی صفتیں پڑھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہدی للمتقین، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں آپ پر جو نازل ہوا، جو آپ سے پہلے نازل ہوا، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جس میں سے ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں۔ اب ان کے بارے میں اللہ نے رزلٹ کے طور پہ بتایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اب اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس ہدایت کا ذکر کیا ہے جو رب کی طرف سے ہے۔ تو یہ وہی آیت ہے جو آپ آگے پڑھیں گے کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے گی تو جو شخص میری ومن تبع ہدایا، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا۔ اب آپ سمجھتے ہیں چیزوں کے ساتھ جب کمبینیشن ہوتا ہے تو چیز کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ جس طرح ڈالر ہے یا پاؤنڈ ہے، تو ایک پاکستان کی کرنسی ہے، تو ڈالر کس لیے زیادہ قیمتی ہو گیا ہے یا ڈالر کس لیے زیادہ مہنگا ہے، بتائیں گے جی؟ ہاں جی، آواز سوال پوچھا آپ سے، جواب دیں۔ میں نے سوال یہ پوچھا، یہاں پر نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، ادھر فرمایا من تبع ہدایا، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی۔ تو آپ کو پتہ ہے اضافت، ریلیشن کی وجہ سے چیزوں میں اہمیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے جس قدر ریلیشن اسٹرانگ ہوگا اسی طرح اس چیز کی ویلیو زیادہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی؟ مثال کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جگہ کی قیمت وہ بدلتی ہے علاقے کے لحاظ سے اور لوکیشن کے لحاظ سے۔ اس طرح یہاں ہدایت کا تعلق اللہ نے اپنے سے جوڑا ہے، جو میری ہدایت ہوگی۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت سے بہتر بھی ہدایت ہو سکتی ہے؟ سر اللہ کی ہدایت کے علاوہ اور کوئی ہدایت ہوتی بھی ہے؟ ہاں جی، آج کلاس میں نے پوچھ مطلب ہدایت اللہ کی آپ کی آواز میں نہیں صاف آ رہی، اپنا مائکرو فون یا اپنا نا کنیکشن وغیرہ دیکھیں۔ ہاں جی جی، کلاس آواز آ رہی ہے؟ جی سر، آ رہی ہے آپ کی آواز۔ میں نے آج سوال پوچھا نا، سوال کا جواب تو جو بندہ دے رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے بہتر ہدایت ہو سکتی کسی کی؟ یہ پوچھا گیا سوال۔ نہیں استاد، نہیں ہو سکتی۔ نہیں ہو نہیں ہو سکتی سکتی۔ نا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہدایت میری طرف سے آئے گی، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، اس ہدایت کے اندر آپ کو پتا سب کچھ موجود ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، معیشت کے احکامات، معاشرت کے احکامات۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یونس میں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیے، یہدیہم ربہم، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا، بھی ایمانہم، ان کے ایمان کے سبب۔ اس کا مطلب ہے ایمان وہ چیز ہے کہ اگر آدمی کے اندر موجود ہے تو اس کی وجہ سے آدمی کو ہدایت ملتی ہے۔ اس لیے جتنا زیادہ ایمان اسٹرانگ ہوتا ہے ہدایت بھی اس کے اندر اسٹرانگ ہوتی ہے، اور جتنا ایمان کمزور ہوتا ہے ہدایت کے اندر بھی نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ایمان کو ذہن میں رکھنا اور ایمان کو بڑھانا یہ ہدایت کے لیے بہت ضروری ہے۔ جتنا زیادہ یہ نا، اس کو کہتے ہیں میتھمیٹکس میں ڈائریکٹ پرپورشن۔ دیر آر ٹو کائنڈز آف، ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ ویریشن، ایک ہوتا ہے انورس ویریشن۔ ڈائریکٹ ویریشن اور انورس ویریشن میں فرق کیا ہے، بتا سکتا ہے جی؟ جی سر، اگر دو چیزوں کے درمیان ڈائریکٹ ریلیشن ہوگا تو ایک کے بڑھنے سے دوسری بھی بڑھے گی، اور اگر انورس ہوگا تو ایک چیز کے بڑھنے سے دوسری کم ہوگی، بالکل صحیح ہے، یا جزاک ایک اللہ کے خیر، کم ہونے بہت صحیح۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح آپ پیسے زیادہ دیں تو پیٹرول زیادہ ڈلے گا، پیسے زیادہ دیں تو چیز زیادہ مل جائے گی، لیکن اگر آپ مزدور زیادہ لگا دیں تو گھر جلدی ختم ہو جلدی مکمل ہو جائے گا۔ اس طرح آدمی زیادہ لگ جائیں تو گھر کی صفائی جلدی ہو جائے گی۔ انورس یہ ڈائریکٹ ویریشن ہے، جس قدر ایمان زیادہ ہوگا اسی قدر ہدایت بھی زیادہ ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فیصلہ کیا ہے۔ اللہ نے خبر دے دی ہمیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے کہ یہ ہدایت پر ہیں۔ کون سے لوگ ہیں؟ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان۔ اب اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ ہاں جی بتائیں جی۔ مطلب قرآن پاک میں جو بھی اللہ نے رولز، جو بھی احکامات بتائے ہیں، ان سب کو وہ مانتے آپ کو پتہ ہے ایمان ثابت تب ہوتا ہے جب آپ اس کو عملی طور پہ امپلیمنٹ کریں۔
मिसाल के तौर पर कुरान मजीद में अहकामात हैं, हिजाब के अहकामात हैं, पर्दे के अहकामात हैं, और मईशत के अहकामात हैं, सूद हराम है, ज़कात है, सारे अहकामात मौजूद हैं। अब इन अहकामात के अंदर जो अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, तो किताब पर ईमान का मतलब ये होगा कि हम जहाँ जिस जगह रियासत में रहते हैं, जो हमारी रियासत है, जो हमें अल्लाह ने इलाका दिया हुआ है, जो हमें लोग दिए हुए हैं, और जो हमारे पास एक रकबा है, एक एरिया है, उसके अंदर हम अल्लाह ताला की इस हदायत को नाफिज करें, तो तब जाके ईमान बनता है। वरना ईमान, आपको पता है, ईमान साबित ही तब होता है जब आदमी ईमान के मुताबिक अमल करे। और ये पहले भी आपको एग्जांपल एक दफा दी थी, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। जैसे आप किसी बड़े आउटलेट पे जाते हैं, तो आउटलेट पे आप खाने का ऑर्डर देते हैं, तो खाने का ऑर्डर देने से पहले आपके सामने एक मेन्यू लिस्ट आती है, और उसके ऊपर पिक्चर्स वगैरह बनी होती हैं, और साथ उनका रेट लिखा होता है, बर्गर इतने का है, बॉटल इतने की। आप उस मेन्यू लिस्ट को देखते हैं, और उसके बाद जब आप ऑर्डर देते हैं, तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो मेन्यू में तस्वीर बनी हुई है वो लेकर आएगा, या एक्चुअल जो बर्गर या चिकन या कोई भी चीज़ है वो लेकर आएगा? जी। जो मेन्यू में एक्चुअल होगा वही हम एक्सपेक्ट करते हैं। नहीं नहीं, मेन्यू पे तस्वीर बनी हुई है ना, मैं कह रहा हूँ तस्वीर काट के ले आए और आपको कर दे, सर्व कर दे, या वो जो तस्वीर बनी हुई है नहीं, वो। तस्वीर से तो हम सेटिस्फाई नहीं ना होंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, तस्वीर पे आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है, ईमान काम है कि एक्चुअल चीज का, कि यानी कि बंदा उस पर अमल करे। तो उनके बारे में अल्लाह फरमाता है कि ये लोग हदायत पर हैं अपने रब की तरफ से। और फरमाया व उलाइका हुमुल मुफलिहून, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। फलाह एक बहुत बड़ी टर्म है कुरान मजीद की, और इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि क्यामत वाले दिन, जिस दिन असल दिन है, अल्लाह ने क्यामत वाले दिन को यौम तगाबुन कहा है, कि क्यामत वाला दिन जो है वो हार और जीत का दिन है। असल हार और जीत जो है वो क्यामत वाले दिन होगी। दुनिया में हार जीत, कोई हार जीत नहीं है। कई दफा ऐसा होता है कि अच्छा आदमी हार जाता है दुनियावी तौर पर, और बुरा आदमी जीत जाता है, लेकिन ये हार जीत है ही नहीं। असल हार जीत ये है कि मन ज़ुहज़िया अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो आदमी जहन्नम की आग से बचाकर, जहन्नम की आग से बचकर जन्नत में दाखिल कर दिया गया, तो फ़क़द फ़ाज़, यकीनन ये कामयाब है। यकीनन ये कामयाब है जो फारिग हो गया, फलाह पा गया। तो यहाँ अल्लाह फरमाता है यही लोग हैं, यानी कि इनके अलावा कोई और नहीं है, यही लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। यही लोग हैं जो सीधे रास्ते पर हैं, और यही लोग फलाह पाएंगे। और आपको पता है, जो आदमी सीधे रास्ते पर हो वही मंजिल पर पहुंचेगा। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि यहाँ पर कि यही लोग सीधे रास्ते पर हैं, यही लोग फलाह पाएंगे, यही लोग कामयाब होंगे। ये तो आपको बात माननी पड़ेगी कि जो जिग जैग रास्ता होता है या ऊपर नीचे रास्ता होता है, वो रास्ते पर चलते हुए आपको बार बार ठोकरें लगती हैं, और कई जगह ऐसा होता है कि आपको समझ नहीं आती मैंने किस तरफ जाना है। तो सीधा रास्ता आपको बिल्कुल दूर खड़े हो तो आपको सामने नजर आता हो, सामने नजर आ रहा होता है कौन खड़ा हुआ है, बिल्कुल वाज़ेह होता है। तो फरमाया इन अल्लज़ीना कफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया। अब इनके मुकाबले में कौन से लोग हैं जिन्होंने कुफर किया है, अल्लाह ताला की बात नहीं मानी। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला की बात नहीं मानी। तो अल्लाह ताला की बात नहीं मानी तो किसकी बात मानी है? शैतान की बात मानी। और यहाँ पर एक बहुत अहम बात आप समझ लें कि शैतान वो अल्लाह ताला के सामने हुज्जतें करता रहा है, दलीलें उसने पेश की हैं अल्लाह ताला के हुक्मों के सामने। ये तो आपको पता होगा, जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और फरिश्तों से कहा, तो अल्लाह फरमाता है फसजदू इल्ला इब्लीस कान मिनल जिन्नी, वो जिनों में से था। एक जगह फरमाया कि फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन। दो चीजें याद रखें कुफर के लिए। जिस तरह आप चीजों का इंग्रेडिएंट बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन और ऑक्सीजन से बनती है, फिर एक खास मॉलिक्यूल्स होते हैं, CO2 कार्बन डाई है, CO कार्बन मोनो है, अमोनिया NH3 है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है। इस तरह चावल है, इस तरह बिरयानी है, इस तरह ही दूसरी चीजें हैं। तो कुफर की जो इंग्रेडिएंट्स है वो दो हैं, अबा वस्तकबरा, आदमी का इनकार करना और तकब्बुर करना। आदमी ये वही का इनकार कर दे और तकब्बुर में आ जाए, तो इसका मतलब है वो आदमी कुफर की सरहद में दाखिल हो गया। समझ आ गई है जी? जी सर। अबा वस्तकबरा, इसलिए आपको पता है साधारण मुसलमान इबा नहीं करता, वो इनकार तो नहीं करता, लेकिन तकब्बुर में जरूर मुब्तला हो जाता है। तो इसका जाहिरी मतलब यही है कि वो इस तरफ जा सकता है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल किब्रु बतरुल हक़ व गमतुन नास। किबर, तकब्बुर, गुरूर, वैनिटी, प्राइड किस चीज का नाम है? कि आदमी जो है वो लोगों को हकीर समझे और हक बात को
तर्क कर दे, हक बात को छोड़ दे या हक बात की परवाह ना करे, हक बात के सामने रोड़े अटकाता है, अपनी अकल पेश करता है, तो ऐसा आदमी मुतकब्बर है। ये ज़हन में रख लीजिएगा, अल किब्रु बतरुल हक व गमतुन नाज़िल, लोगों को हकीर समझने का नाम और हक को छोड़ देने का नाम, ये हक के सामने अकड़ जाने का नाम, ये किब्र है। वाज़ेह हो गया जी? जी सर। तो उसने कहा अच्छा वो क्यास कर रहा है, क्यास से मुराद है अल्लाह अच्छा यहाँ ये ज़हन में रख लें कि हमने अल्लाह ताला के हुक्म के सामने क्यास नहीं करना। क्यास से मुराद है अपनी अकल नहीं दौड़ानी, ये अल्लाह ने हुक्म क्यों दिया है, मैं औरत हूँ मुझे ये हुक्म क्यों दिया है, ये मर्द है उसको हुक्म क्यों दिया है, हमने कभी एतराज नहीं देखा। आप जानते हैं खास लेवल पे जाके नाइन्थ में 10th में खास लेवल पे जाके आप खुद 2 ब्रांचें बनाते हैं बायो कंप्यूटर की, कैसे ही है जी? जी सर। अच्छा फिर बायो वाले बायो में चले जाते हैं, कंप्यूटर वाले कंप्यूटर में, फिर एफएससी में एफए में जाएं तो फिर और ब्रांचें बनती हैं, क्योंकि आपको पता है कि मुल्क के या रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में लोगों ने खपना है, कोई टीचर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, ताकि रियासत का निज़ाम चलता रहे। तो क्या ख्याल है, अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी, तो क्या अल्लाह ताला ने नौजुबिल्लाह जुल्म किया है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। ये तो अकली तौर पर साबित है कि अगर आप किसी सबको एक जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दें तो बाकी काम कौन करेगा। एक जगह पे आप देख लें कि एक आदमी काम कर रहा है तो उसके कितने हेल्पर्स होते हैं जो डिफरेंट किस्म का काम करते हैं, ऑपरेशन थिएटर में या किसी जगह पर भी। तो ये कुफर जो है ना, ये आता है जब आदमी क्यास करता है, यानी कि अल्लाह ताला की वही के आगे क्यास करता है। वो क्यास क्या कर रहा था, कहने लगा खलकतनी मिन नारिन व खलकतहु मिन तीन, या अल्लाह मुझे तूने आग से बनाया, इसको मिट्टी से बनाया। ये बदबख्त भूल गया है कि अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है, तो अल्लाह ताला का तो हर हुक्म हिकमत पर मबनी है, वो हमें समझ आए या ना आए। अल्लाह ताला का हर हुक्म हिकमत पर मबनी है, हमें समझ आए या ना आए। समझ आ जाए ठीक है, ना समझ आए तब भी वो अल्लाह ताला का हुक्म है। अभी आप देखें परसों आपके इंशाल्लाह रोजे शुरू हो जाएंगे, तो आप क्या हिकमत बयान करेंगे कि रोजा है, आपकी फ्रिज भरी हुई है खाने की और आप नहीं खा रहे, क्या इसकी हिकमत है? जैसे कुरान की आयत में आता है ना कि तकवा पैदा हो, रोजा रोजे नहीं की वो वजह तो से। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि एक आदमी कहेगा यार चंगे भले खाने पे ना, तुझे क्यों नहीं खा रहे, ये गाले करना ली खाओ खाना है, वो क्या फायदा होगा जी? असल में अल्लाह सुब्हाना व तआला, हमने स्लिम नहीं होना, हमने स्मार्ट नहीं होना ना, हमने इसलिए रोजे रखने हैं। हमने तो रोजे रोजे इसलिए रखने कि अल्लाह ने हुक्म दिया हुआ है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तो काफिर आदमी वो क्यास करता है, अकल को इस्तेमाल करता है, अल्लाह ताला की बातों के सामने अकल को इस्तेमाल करना ये कुफर की तरफ जाने का पहला जरिया है। लिहाजा अल्लाह ने कह दिया है, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको समझा दिया है, बात खत्म हो गई। जो चीज अल्लाह ने पर्दा रखी हुई है वो पर्दे में रहने दें आप, और जो चीज आपके लिए वाजे है उसको आप कर गुजरें। और इसकी सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं, बहरहाल वो अभी देने की जरूरत नहीं है। फरमाया जो लोग कुफर करते हैं, सवाउन अलैहिम, तो बराबर है उन पर, अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, आप उनको डराएं या ना डराएं वो ईमान नहीं लाएंगे। साफ ज़रा एक बात तो वाज़ेह है कि यहाँ पे सारे काफिर मुराद नहीं है, यहाँ पर सारे काफिर मुराद नहीं है, बल्कि जो पीछे चीजें बयान हुई हैं, बाज लोग ऐसे जो उनका इनकार करने वाले हैं और ऐसी स्टेज पर पहुंच जाते हैं कि वो उनके दिल सख्त हो जाते हैं, जिस तरह अल्लाह ने कुरान में फरमाया हुआ है सूरह बकरा के अंदर ही, सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिय कल हिजारति अव अशद्दु कसवा, कि तुम्हारे दिल सख्त हो गए, और वो सख्त कितने हो गए, पत्थरों की तरह, ये पत्थरों से भी ज्यादा सख्त, अव अशद्दु कसवा। तो बाज लोग हट धर्म हो जाते हैं, ढीठ हो जाते हैं, उन पर फिर हदायत असर नहीं करती। तो इस तरह तक पहुंच जाते हैं कि वो यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम, वो नबी अलैहि इस्लाम को पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को पहचानते हैं। तो बताइए बेटों को पहचानने में आदमी गलती करता है? आदमी अपने बेटे को जी पहचान लेता है कि नहीं जी? जी पहचान लेता है। तो अल्लाह ताला के नबी अलैहि इस्लाम को पहचानते ऐसे ही है कि वाकई अल्लाह के नबी हैं, तौरात में भी मौजूद है, इंजील में भी मौजूद है, अखलाकी तौर पर भी सबसे ऊंचे मुकाम पर हैं, वादा, अमानत, तकवा, परहेजगारी, शक्लो सूरत, फिक्र अकल, सूरत व शक्ल, किरदारो अमल में, कौलो अमल में बेहतरीन है। इसके बावजूद, सारा कुछ जानने के बावजूद काफिरों ने आपकी बात नहीं मानी, और इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया ना, तब्बत यदा अबी लहब व तब, कि टूट गए हाथ अबू लहब के और वो खुद भी तबाह हो गया। वो इसलिए तबाह हुआ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उसने बात नहीं मानी। तो बाद लोग हठ धर्मी के अंदर इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि उन पर बात बेअसर हो जाती है, यानी कि आप सोए हुए को तो जगा सकते हैं,
लेकिन एक आदमी जाग रहा है और उसके बाद जानबूझ के वो सोया हुआ बना हुआ है, जानबूझ के मदहोश हुआ, तो उसको कौन जगाएगा? तो लिहाजा अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोग काफिर हैं, ऐसे हर धर्म किस्म के काफिर हैं, अबू जहल की तरह के, अबू लहब की तरह के, तो ये वो लोग हैं कि आप इनको डराएं या ना डराएं, ये ईमान नहीं लाएंगे। और ईमान क्यों नहीं लाएंगे? खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ताला ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी है, इनके कुफर और इनके बुरे अमाल। उसकी वजह से क्या हुआ है कि इनके दिलों पर मोहर लग गई है। तो मोहर लगने की वजह क्या बना है? मोहर लगने की वजह बना है इनका वो कुफर और इनका वो इनाद और पिछली चीजों का इनकार। तो अल्लाह ताला ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी है, वाला समहिम, और इनके कानों पर भी लगा दी है। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी है तो वजह क्या बनी है? अल्लाह ताला ने मोहर क्यों लगाई है? और बाद लोग इस पे इतराज कर बैठते हैं कि अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी है तो नौजुबिल्लाह ये तो ज्यादती वाला काम है। क्या कहते हैं जी आप? नहीं, अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लगाई है तो उसके पीछे कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्जी और बेहतरी है उसी में। अच्छा, दूसरा बड़ा सिंपल सा है। अगर आप जज हैं, चीफ जस्टिस हैं, और आपके सामने एक कातिल पेश होता है जिसने 2-3 बंदे कत्ल किए हुए हैं, और आप उसको सजा दे देते हैं, तो साफ यही कहा जाएगा ना कि जज ने सजा दी है उसको कत्ल की, यही कहा जाएगा ना जी। जी उस्ताद। लेकिन आप ये बताइए कि उसको जो सजा मिली है, सजाए मौत, उसकी वजह कौन बना है? जज बना है या उसका अमल बना है? बेशक अमल बना है उसका। हाँ, बेशक अमल बना। लिहाजा यहाँ पे वाज़ेह है कि जो माल है, जो नतीजा है, वो निकला ये है कि अल्लाह ने मोहर क्यों लगाई है? उनके अमाल की वजह से। अमाल ही ऐसे करते रहे, अगर अल्लाह ताला की बात मानते, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नबी अलैहि सलाम की बात मानते, तो अल्लाह मोहर भी ना लगाता। तो खातम अल्लाहु अला कुलूबिहिम, इनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी है, वाला समहिम, और इनके कानों पर भी मोहर लगा दी है। और अगर ये मोहर अल्लाह ने लगाई है, मगर बायस कौन है? इनका अमल। जिस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया है ना सूरह निसा में भी, फरमाया बल तबा अल्लाहु अलैहा बिकुफ्रिहिम, वहां पर तो वाज़ेह फरमा दिया कि अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी है। खातमा तबा तकरीबन एक ही माना है कि अल्लाह ने मोहर लगा दी है इनके दिलों पर। किस वजह से? इनके कुफर की वजह से। इन्होंने जो कुफर किया हुआ है उसकी पनिशमेंट के तौर पर इनको ये सजा मिली है। और आपको पता है दोनों चीजें बड़ी अहम है। बताइए आपके ज़हन में कुलूब और समा के बारे में क्या है? क्योंकि अल्लाह ने आंखों का बाद में जिक्र किया है जी। किसी के ज़हन में है जी कल्ब के बारे में और समा के बारे में? जी उस्ताद, आप क्वेश्चन रिपीट करते हैं। अल्लाह ताला ने पहले जिक्र किया दिल का, फिर जिक्र किया है कानों का। मैं पूछ रहा हूँ कि इसकी क्या वजह बनती है? जो सुनने से पहले दिल के अंदर जो ये बड़ी अहम बात है समझने वाली। वो ये है कि आदमी का दिल जो है उसके अंदर, आप साइंस भी साबित कर चुकी है कि सोचने समझने की सलाहियत पाई जाती है। और आपके कानों से ज्यादा आप एक तरफ कान और एक तरफ आंखें। आपको पता है कान, जो आंखें हैं वो सिर्फ सामने की तरफ देख सकती हैं, पीछे की तरफ नहीं देख सकती, बल्कि दाएं और बाएं भी प्रॉपरली देख सकती। ब्लर हो जाती है, समझ नहीं आती है आंख को। पीछे तो खैर खुद बिल्कुल नहीं देख सकती। एग्री जी? जी जी उस्ताद। सर। लेकिन आपको पता है, आप कहीं कमरे में बिठा दिया जाए, आप अंधेरा कर दिया जाए, तो अंधेरे के अंदर आप कुछ तस्वीर तो कुछ मुझे या किसी और को तो नहीं देख सकेंगे, लेकिन मेरी जो आवाज है, मैं चाहे आपके आगे होके मैं बोलूं, आपके दाएं बैठ के बोलूं, या बाएं बैठ के बोलूं, या पीछे बैठ के बोलूं, क्या आप मेरी आवाज को सुन लेंगे चारों डायरेक्शन से? हाँ जी जी। सर। बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब है समा बहुत अहम चीज है। इसी से कहा जाता है ना कि बात को पहले सुने। बाद औक़ात हमारी लड़ाई की वजह ये होती है कि हम बात अगले की नहीं सुनते और अपनी सुनाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ फरमाया अल्लाह ने मोहर लगा दी, और समा जो है दिल पर मोहर लगी, और दिल का एक टूल है समा, कि आदमी सुनता है। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया इन्ना फी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन काना लहू क़ल्बुन औ अलका समा व हुवा शहीद। यही तरतीब अल्लाह ने सूरह काफ में रखी है कि इसमें जिक्र है, इसमें याद दहानी है, इसमें नसीहत है उस आदमी के लिए जो आदमी अपने दिल को लगाता है इस तरह, और अपने कानों को लगा देता है कि मैंने अल्लाह ताला का कुरान समझना है। वो फिर अखज़ करता है कि ये क्या कहा जा रहा है। आपको पता है हमारे यहाँ समा को इस्तेमाल किया जाता है, हम उससे गाने याद कर लेते हैं, बड़ी बड़ी फिल्में याद कर लेते हैं, बड़े बड़े डायलॉग याद कर लेते हैं। तो माइंडसेट क्या बना हुआ है, ये सारी चीजें हमें याद हो जाती हैं क्योंकि हम बार बार उसको सुनते हैं, बार बार उसमें तवज्जो देते हैं, इंटरेस्ट महसूस करते हैं।
लेकिन जब कुरान मजीद समझने की बारी आती है, याद करने की बारी आती है, तो बताइए क्यों नहीं याद होता? क्योंकि ध्यान नहीं लगाते। क्योंकि हम ध्यान नहीं उसमें लगाते हैं। ये वही वाला हिसाब है कि आपका लैपटॉप है, उसकी डी ड्राइव है, सी, उसमें जो मर्जी भर लें आप, यही आपके हालात हैं आपके दिल के। तो दिल बहुत अहम चीज है। अल्लाह ताला ने दिल पे मोहर लगा दी। आपको पता है दिल अंधे हो जाते हैं, दिल सख्त हो जाते हैं, और दिल सलीम और मुनीब भी होते हैं। अल्लाह ना करे हमारा दिल सख्त हो जाए, अल्लाह ना करे कि हमारा दिल मुर्दा हो जाए, अल्लाह ना करे हमारा दिल अंधा हो जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि फ़इन्नहा ला तामल अबसार वलाकिन तामल कुलूबुल लती फिस सुदूर। ये जो दिल है ये अंधे हो जाते हैं। दिल आपका ड्राइवर है, और आप देख सकते हैं अगर दिल आपके जिस्म का ड्राइवर है, अगर ड्राइवर अंधा हो जाए और गाड़ी आप उसको दे दें चलाने के लिए, तो कुछ अरसे के बाद क्या अंजाम होगा? एक्सीडेंट। आप तजुर्बा करके देख लें कि एक बिल्कुल सेहतमंद आदमी है, उसकी आंखों में पट्टी बांध देंगे, कुछ देख ना सके, उसके बाद उसे कहो चलो अभी गड्डी कटो तो मैनू मुल्तान ले जाओ, कराची ले जाओ, तो सावधान है कहीं और ही ले जाएगा वो आपको 15-20 मिनट के बाद, क्योंकि उसको तो नजर कुछ नहीं आ रहा। तो जिसका दिल सलीम है, अल्लाह ने फरमाया सलीम से क्या मुराद है? जिसका दिल मुसलमान हो जाए। जब दिल मुसलमान हो जाएगा तो फिर सप्लाई दुरुस्त होगी। जब दिल मुसलमान होगा फिर आंखें वो नहीं देखेंगी जो नहीं देखना चाहिए था, सिर्फ वो देखेंगी जिसको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है देखने को। तो ये आवारगी तब खत्म हो जाएगी जब हमारा दिल साफ होगा। और फरमाया वाला समीम, इनके कानों पर भी। अब कानों पे क्या है? कानों पे अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी है। चीज कैसे दाखिल होगी, चीज कैसे अंदर जाएगी? तो साफ ज़ाहिर है दोनों टूल्स खत्म हो गए। दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी है, कानों पर मोहर लगा दी है, तो हदायत अंदर दाखिल नहीं हो सकती। जब हदायत अंदर दाखिल ही नहीं हो सकती, तो साफ ज़ाहिर है जिस तरह हमारे यहाँ सुई गैस का हाल है, बताइए सुई गैस आ रही है आप सब लोगों की? हाँ जी। सर कभी आती है कभी नहीं आती है। बात जब नहीं ना आती तो भाई गौर कर ले, वो नहीं आती तो इसका मतलब है ही नहीं, तो आएगी कैसे? तो खाना कैसे पकेगा? रिजल्ट तो वही निकला ना। तो जब आया ही नहीं दिल में कोई चीज, कानों ने सुनी नहीं कोई चीज, तो हमारे अंदर किस तरह हदायत आ सकती है? तो लिहाजा हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने दिल जो है ना, और दिलों की अल्लाह ने दवाई कुरान में बता दी है। फरमाया अला बिजिक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। जिस तरह एक मछली को आप निकालें, छोटी छोटी एग्जांपल है, जरूर इसको समझिएगा। एक मछली को आप अपने ड्राइंग रूम में रख लें और वो तड़पना शुरू कर देगी। आप फौरन उसको पकड़ें और उसको पानी में डाल दें तो वो पुरस्कून हो जाएगी। उसको ना अपनी जो खुराक मिल जाएगी, जिस की आदि है, ये जिसके लिए बनाई गई है। बिल्कुल ऐसे अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह के जिक्र में खबरदार हो जाओ कि अल्लाह के जिक्र में दिलों का इत्मीनान है। और फिर फरमाया कुरान मजीद के अंदर ही कि वाइजा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन, कि जब इन पर कुरान मजीद की आयात पढ़ी जाती हैं तो इनका ईमान बढ़ जाता है। और ईमान का महल, ईमान की प्लेस वो दिल है। जब आपका दिल वो ईमान से भर जाता है तो ऑटोमेटिकली आपकी पूरी बॉडी जो है वो जिस तरह हदीस के अंदर बयान हुई है कि फिर आदमी वही चीजें सुनता है जो अल्लाह ने हलाल की हुई हैं, वही चीजें देखता है जो अल्लाह ने हलाल की हुई हैं, और हराम के करीब नहीं जाता। तो ये दोनों चीजें, इसका मतलब है दिलों को भी और अपने समाज को भी ऐसी चीजों से बचाएं जो बोहर लगने का बायस बन सकती है। वाज़ेह हो गया जी? जी क्लास। जी सर। अब आगे क्या हुआ जी? वाला अब सारी में गिशावतुन, फरमाया इनकी जो आंखें हैं उस पे पर्दा है। अब मसला वाज़ेह हो गया। गिशावतुन में जो आहर में डबल हरकत है, डबल पेश है, ये ताजीम के लिए है, यानी कि बहुत भारी पर्दा है। तो आपको पता है ये पर्दे हल्के भी होते हैं, भारी भी होते हैं, हजारों रुपए के पर्दे भी होते हैं, कामदारी पर्दे भी होते हैं जो आप खिड़कियों में लगाते हैं, आप घरों में लगाते हैं, और आप अपनी डेकोरेशन करते हैं। आप खुद गौर कर लें, दिल पर मोहर लग चुकी है, कानों पर मोहर लग चुकी है, और आंखों पर पर्दा है। ठीक है। अल्लाह ने फरमाया कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, सूरह मुतफ्फिफीन में फरमाया कि ये जंग है। अल्लाह ताला की जब नाफरमानी करता है आदमी तो एक जंग है जो उसके ऊपर चढ़ जाता है। आंखों पे पर्दा लग गया है, दिलों पर मोहर लग गई है, कानों पर मोहर लग गई है, तो अब क्या रिजल्ट निकल सकता है? हदायत इसके पास नहीं आ सकती।
हदायत आने के तमाम रास्ते महफूज हो चुके हैं, तो लिहाजा रिजल्ट क्या निकला, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, इनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। साफ ज़ाहिर है कि इन्होंने अल्लाह ताला का कुरान नहीं सुना, अगर सुना भी है तो उसको अनसुना कर दिया है, और उसके बाद ये है कि यहाँ पर तो उनको मोहर लगी हुई है, उनके कान जो हैं वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है, तो लिहाजा ये कन्फर्म है कि इनके लिए अजाब है बहुत बड़ा, और वो अजाब कौन सा है, वो जहन्नम का अजाब है। जो कल्ला इन्नहा लज़ा नज़्ज़ाअतन लिश्शवा तदऊ मन अदबरा व तवल्ला, फरमाया वो जो चिपक जाने वाला अजाब है, तदऊ मन अदबरा व तवल्ला, वो ऐसे आदमी के लिए है, ऐसे आदमी को दावत देगा, उसका साथी बन जाएगा, उसको नुकसान पहुंचाएगा, मन अदबरा व तवल्ला, जो अल्लाह ताला के दीन से फिरता है, मुंह मोड़ लेता है, इग्नोर करता है, इग्नोर कर रहा है अल्लाह ताला के दीन को, इग्नोर कर रहा है अल्लाह ताला की वही को, इग्नोर कर रहा है नबी अलैहिस्सलाम के फरामीन को, तो ये इग्नोरेंस जो है क़यामत वाले दिन इसकी जलालत और इसकी तबाही का बायस बन जाएगी, और वो अजाब बहुत बड़ा है जो अल्लाह ताला इसको क़यामत वाले दिन देगा। साफ ज़ाहिर है ये आयत बड़ी सिंपल है कि एक रिवॉर्ड है, एक पनिशमेंट है। साफ ज़ाहिर है रिवॉर्ड किसके लिए, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए है, पनिशमेंट किसके लिए है, जो आदमी टीचर की बात नहीं मानता, तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। अब फरमाया वामिन अन्नासी, लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं, मैं यकूलू, बड़ी अहम आयत है कुरान मजीद की, ये जरा गौर कर लीजिएगा। फरमाया लोगों में से ऐसे भी हैं, मैं यकूलू, जो कहते हैं। आपसे सवाल है, कहने का काम इंसान अपने जिस्म के किस हिस्से से करता जुबान से। है? जुबान से करता है। और अल्लाह ने अब ये गौर किया, अल्लाह ने फरमाया कि ये जुबान से क्या कहते हैं, आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, कि हम ईमान लाए अल्लाह ताला पर और हम ईमान लाए क़यामत के दिन पर। और अल्लाह ने रिजल्ट क्या निकाला है, वमा हुम बिमोमिनीन, माँ के बाद आप देख सकते हैं यहाँ बी, बाजिर बी है, इसका मतलब है कि इसका तर्जमे में ये बात बनेगी कि वो जरा बराबर भी ईमान वाले नहीं है, जरा बराबर ईमान भी इनके अंदर मौजूद नहीं। यहाँ से वाज़ेह हो जाता है कि जुबानी कलामी दावा, बताइए जुबानी कलामी दावा जो है वो चलेगा? नो सर। आप अपनी ना एम्प्लॉयमेंट को भी देख सकते हैं, आप जब रिक्रूट किए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, तो कई प्रोसेस से गुजरते हैं। पहला आपका जुबानी दावा होता है, जी मैं डॉक्टर हूं, तो आपको पता है कि आपका जुबानी दावा तब तक एक्सेप्ट नहीं होता जब तक आप उसकी सनद शो नहीं करते। ऐसे ही है जी। जी सर। फिर आपको पता है सनद की वेरिफिकेशन भी अब इन्होंने की हुई, HEC से वेरीफाई की हो, वेरीफाइड हो फलां जगह से बाहर। अच्छा, सनद को देखने के बाद भी वो फिर आगे आ जाते हैं, आपका एक्सपीरियंस है कि नहीं है, और आप हमें ये काम करके दिखाएं कि आर यू कैपेबल और नॉट, ये सारी चीजें हैं। खाली जुबानी कलामी दावे पर तो आप CV नहीं बनाते ना, आप अपने CV को सपोर्ट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। एग्री है सारे लोग? जी सर। अब वही वाला हिसाब है, जुबान से कह दिया CV बन गया, मैं मुसलमान हूँ, मैं बहुत नेक हूँ, मैं बहुत मुसलमान हूँ, मैं बड़ा मोमिन, ये जुबानी कलामी है, ये CV आपका बन गया। सनदे किधर है? वो सनदे कैसे बनेगी? नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, सच बोलते हैं, झूठ से बचते हैं, जना बदकारी तो नहीं करते, ये तमाम चीजें आ जाएंगी, ये आपकी सनदे हैं। तो सावधान, जो पहले वाला दावा है वो तब साबित होगा जब आपके पास ये सनदे मौजूद होगी। इसलिए उलमा इकराम ने, मुहद्दिसीन ने 3 चीजें बयान की हैं। सबसे पहले ईमान बिल कल्ब है, कि आदमी का ईमान दिल से हो कि अल्लाह ताला सच्चा है, अल्लाह ताला का नबी अलैहिस्सलाम वो सच्चे, कुरान सच्चा है, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस सच्ची है, यानी कि दीन सच्चा है। पहले तो ईमान दिल में हो, ये पहला बन गया। उसके बाद दूसरी ब्रांच इसकी है कि ईमान बिल लिसान, कि ये इकरार करे अपनी जुबान से कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, या कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब जुबान से भी इकरार करे, लोगों को बता दे कि मैं नबी अलैहिस्सलाम का मानने वाला हूं। अब तीसरी चीज शुरू होगी, और वो क्या है, अल ईमान, इकरार के बाद अल ईमान बिल आज़ा वल जवारिह, यानी कि अपने जिस्म की बॉडी से, बॉडी के पार्ट से ये साबित कर दे कि मैं अल्लाह का मानने वाला हूं। वाज़ेह हो गया जी? जी सर। अब देखिए, आप प्लॉट लेते हैं, प्लॉट लेने के बाद उसका एक ग्रे स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ग्रे स्ट्रक्चर बनाने के बाद थर्ड स्टेप में आप उसकी टाइलिंग करते हैं, तब जाके मकान कंप्लीट होता है और खूबसूरत लगता है। प्लॉट, ग्रे स्ट्रक्चर, देन टाइलिंग। इस तरह ईमान जुबान से, दिल में आ गया ईमान, उसके बाद जुबान से, और उसके बाद असल स्ट्रक्चर है जब आप उसकी टाइलिंग करते हैं थ्रू योर डीड्स।
اگر آپ اچھے ڈیڈز کرتے ہیں تو یو آر اے ویری گڈ مسلم. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کا سورہ صافات میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اب ذرا غور کریں, وہ اپنے بیٹے کو لے جا رہے ہیں ذبح کرنے کے لیے, تو اللہ نے وہاں لفظ کیا بولا ہے, فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلما وتلہ للجبین. باپ نے بیٹے کو جبین یعنی پیشانی کے بل لٹا لیا, تو اللہ فرماتا ہے فلما اسلما, دونوں اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرمانبردار بن گئے. بڑے ہیں تب ہیں جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے مطابق اپنے جسم کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں سونپ دی. تو آپ کے جسم کے جتنے بھی پارٹس ہیں وہ سارے کے سارے لگنے چاہیے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں, تب جا کے ہمارا ایمان مکمل ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے کئی چیزیں ایسی ہیں جو مکمل نہ ہوں تو ہم وہاں سے اٹھتے بھی نہیں ہیں اور نہ اس کو پے کرتے ہیں اس آدمی کو. اس کی کئی ایگزامپل موجود ہیں. آپ جاتے ہیں جوتا لینے کے لیے, سٹائلوں پہ گئے, آپ چلے گئے جی کلائیو پہ چلے گئے, آپ انڈیور پہ چلے گئے, آپ سروس پہ چلے گئے, آپ ہیلز پہ چلے گئے, آپ میٹرو پہ چلے گئے, اور بھائی احسان چپل پہ چلے گئے, احسان چپل اسٹور پہ. یہ ساری برانڈ جو آپ جانتے, آپ کو اگر میں دائیں پاؤں کا جوتا دے دوں بائیں کا نہ دوں تو کتنے پیسے دیں گے آپ مجھے؟ سر ہم وہ لیں گے ہی نہیں. کب تک نہیں لیں گے؟ جب تک اب میں جو آپ سے کہتا ہوں دائیں ہی لے جائیں, وہ ساگر ہے, آپ کو یہ پتا ہے کہ جو ہیل کا فرق ہوتا ہے, تو اگر آپ ایک جوتا لے کے اس کی تھوڑی سی ہیل ہو تو دوسرا جوتا نہ ہو آپ کے پاؤں میں تو آپ تو چل ہی نہیں سکتے. ایگری کرتے جی خواتین؟ بتائیں جی. جی سر. اور سارے میں سمجھ بھی آ رہی کہ نہیں؟ دسو باجی. جی سر. چلے ماشاء اللہ. میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کا نا یہ اپنا لائٹلی رمضان بھی شروع ہونے والا ہے, پھر آپ کے گیپ آ جانا ہے, تو میں کہا چلیں بات بڑی سمپل سی ہے. یو وانٹ ٹو ہیو اے بیلنس. بیلنس کے لیے کیا ہے کہ دونوں جوتے پہنے ہو. تب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس لیے منع فرمایا کہ لا تمشی فی نعل واحد, کہ ایک پاؤں میں جوتا پہن کے نہ چلو. دیکھیے نبی علیہ السلام کی کتنی گہری نظر ہے. فرمایا ایک پاؤں میں جوتا پہن کے نہ چلو. اس کی وجہ ایک حکمت یہ نظر آتی ہے کہ لوگ برا محسوس کریں گے, عجیب آدمی لگے گا ایک پاؤں میں جوتا اور ایک پاؤں میں نہیں ہے. دیکھیے آپ کا کی دین جو ہے کس حد تک آرڈر والا ہے, کتنی اس کے اندر ترتیب موجود ہے. ایگری جی؟ جی سر. اور دوسری وہی وجہ ہے کہ بھئی ایک جوتا پہنا ہوگا دوسرا نہیں پہنا ہوگا تو گر سکتا ہے, چوٹ اس کو لگ سکتی ہے, کیونکہ اس کا بیلنس نہیں ہے. ایک طرف اس کا اگر قد 6 فٹ ہوا ہے تو دوسری جگہ 5 فٹ 10 انچ ہوگا, 2 انچ کی ہیل ہے یا 1 انچ کی ہیل ہے. تو یہاں اب یہ وہی والی بات ہے کہ یہاں ایمان تب مکمل ہوگا قول دل سے, پھر قول اور پھر فعل سے ثابت کر دیں کہ میں بہت اچھا سرجن ہوں, یہ دیکھیں جی میں نے سرجری کی ہے, یہ دیکھیں میں نے ہارٹ کی سرجری کر دی ہے, پھر پتہ چلے گا واقعی سرجن ہے. زبانی کلامی تو نہیں بات بننی. اس لیے فرمایا کہ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر, وما ہم بمومنین, یہ اصل میں ایمان والے ہیں ہی نہیں, ذرا برابر ایمان والے نہیں ہیں, ان کے اندر ایمان موجود ہی نہیں ہے. اور وجہ کیا ہے؟ ذرا بھی ایمان ان کے اندر موجود نہیں ہے. کیا کرتے ہیں؟ یخادعون اللہ, یہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. والذین آمنوا, اور یہ دھوکہ دے رہے ہیں ایمان والوں کو. اللہ اکبر. اب کس طرح دھوکہ دے رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بڑی اہم بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ دے ہی نہیں سکتا کوئی. وجہ اور کیا بیان کی ہے کہ یہ خود سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیا ہوا ہے. اور یہ جو آیت ہے نا, یہ والا حصہ یہ بہت اہم ہے. وما یخدعون الا انفسہم, یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. دھوکہ کیا ان کو ملتا ہے, یہ ذرا مثال سمجھ لیجئے گا بات. میں بڑی سمپل اگزامپل دوں گا, امید ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی. ایک چیز ہوتی ہے ایکسپیکٹڈ اور ایک ہوتی ہے ان ایکسپیکٹڈ. کین یو میک دا ڈفرنس؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ ایکسپیکٹڈ میں اور ان ایکسپیکٹڈ میں کیا فرق ہے جی؟ ایکسپیکٹڈ سر وہ ہے جو کہ ظاہر ہے, جو ہو کے رہنا ہے, جو کام کیا ہے اس کے, جس طرح ایک اگر کام کیا ہے تو اس کا جو ریزلٹ ہے وہ ویسے ہی ہوگا جیسا وہ کام کیا. ایکسپیکٹڈ ہوگا, مجھے پتا ہوگا کہ اگر میں نے کوئی برا کام کیا تو اس کا برا ہی ریزلٹ ہوگا. ان ایکسپیکٹڈ تو جو ہے جو کہ آپ ایکسپیکٹ نہ کر رہے ہو بالکل بھی, اس کا الٹ ہو جائے. آپ دیکھیے اب ایگزامپل کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کو گھر سے لے جائے اور یہ کہہ کر کہ آئیں جناب آپ کو نا میں کھانا کھلاتا ہوں فلاں آؤٹ لیٹ پہ,
वो आपका दोस्त है, वो आपको ले जाता है, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वहाँ खाना मिलेगा, और आपकी ना रूटीन कुछ और तरह होती है, क्योंकि आप बिल्कुल नॉर्मल होते हैं कि मैं वहाँ जाऊंगा खाना खाऊंगा। अच्छा, अब उलट ये कि एक आदमी आपको कहे कि मैं आपको खाना खिलाने के लिए ले जा रहा हूँ, आप कहें ठीक है जी। अब जब वो वहां उस आउटलेट पे पहुंचे तो वहां 10-12 आदमी हाथ में असला पकड़े हुए, पिस्तौल पकड़े हुए, लाठी पकड़े हुए, खंजर पकड़े हुए, वो आपको मारने के दरपे हों, उस वक्त बताइए आपकी क्या कैफियत होगी? आप घर से किस नीयत से निकले थे और वहां पे ये आप देखें तो क्या आपकी कैफियत होगी? हाँ जी। अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड, आप तो बड़े परेशान हो जाएंगे। सर वही कि एक इंसान खाना खिलाने दे जाए, वही एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड पे आप कह रहे थे। आप ये अपने आप को धोखा किस तरह दे रहे हैं भला? वो ये है कि ये दुनिया में सावजर है, जो मुनाफिक किस्म के लोग हैं जिनकी निशानियां थोड़ी सी मैं जिक्र करता हूँ। मुनाफिक आदमी दुनिया में रहता है ना, तो लोग उसके साथ रिश्ते भी कर लेते हैं, उसको अपनी बेटियां भी दे देते हैं, बेटे भी दे देते हैं, निकाह भी कर लेते हैं मुसलमान उसके साथ, हालांकि वो मुनाफिक होता है। अब ये मुसलमान इसके साथ निकाह कर लेते हैं, मुसलमान इनको बेटियां दे देते हैं, मुसलमानों के साथ इसकी शादियां हो जाती हैं, लेन देन हो जाता है, तो ये अपने गुमान में समझ रहा होता है कि इंशाल्लाह क़यामत वाले दिन, इसका ज़हन ये बन जाता है कि क़यामत वाले दिन मैं भी जन्नत में चला जाऊंगा। ये समझ आ गई सबको जी? जी सर। दुनिया में मैं फिर क्लियर कर दूं, मुनाफों की एग्जांपल मैं पहले दे दूं कि व्हाट आर द सिंबल्स कि जिससे मुनाफिक पहचाना जाता है। आइडेंटिफिकेशन आपने करनी नंबर एक। मुनाफिक आदमी जो है वो अल्लाह और उसके रसूल की जब बात आए, जिस सूरह निसा में अल्लाह फरमाता है राइतल मुनाफिकीन यसुद्दूना अनका सुदूदा, पढ़ने वाला रुकू है वो 59 आयत के बाद, आयत नंबर 59 के बाद सारा पढ़िएगा, अगली 15-16 आयतें तो आपकी ना आंखें खुल जाएंगी। अल्लाह फरमाता है जब इनको कहा जाता है वाइजा कीला लहुम तालो इला मा अंज़लल्लाहु व इलर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ आओ, तो आप मुनाफिकों को देखेंगे कि वो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की तरफ नहीं आएंगे। एक निशानी। दूसरी निशानी फरमाया वाइजा कामू इला सलाती कामू कुसाला, जब नमाज पढ़ेंगे तो बड़ी काहली के साथ पढ़ेंगे, इनको मुसीबत पड़ी होगी। इसलिए नबी अलैहि सलाम ने फरमाया इन्ना अस्कल सलाती अल मुनाफिकीना सलातुल इशा व सलातुल फजर, मुनाफिकों पे सबसे भारी नमाज वो फजर की और इशा की नमाज है, इशा की नमाज और फजर की नमाज है। समझ आ रही है सबको जी? जी जी सर। मजीद आपने पढ़नी है तो सूरह मुनाफिकून पढ़ लीजिएगा, टाइम शॉर्ट है, वो 29-28वें पारे में सूरह मुनाफिकून। अब ये जो मुनाफिक लोग हैं मुआशरे में रह रहे हैं, तो इनकी मुनाफिकत के बावजूद लोग इन पे भरोसा करते हुए इनसे रिश्ते भी कायम कर लेते हैं, इनसे लेन देन भी करते हैं, तिजारत भी करते हैं। ये मुसलमानों के साथ तकरीबात में भी शरीक होते हैं, निकाह में आ गए, अकीके में आ गए, ईद ईद वाले दिन मिल लिया, ईद उल फितर वाले दिन, ईद उल अजहा वाले दिन, तो ये समझ इनका माइंडसेट बन जाता है कि हम क़यामत वाले दिन भी बच जाएंगे। अब क़यामत वाले दिन ये इस एक्सपेक्टेशन में जाएंगे कि अल्लाह हमें जन्नत में दाखिल कर देगा, लेकिन अल्लाह ने सूरह निसा में फरमाया कि इन्नल मुनाफिकीना फिर दरकिल असफली मिनन नार, बेशक मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे निचले गड़े में होंगे, निचली तह में होंगे। अब अंदाजा लगाएं, ये है वो धोखा जो ये खा रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि वी आर मुस्लिम्स, लेकिन क्यामत वाले दिन क्या होगा जब उलट होगा, इनकी एक्सपेक्टेशन के खिलाफ चीज होगी, तो ये फिर उस दिन इंतहाई हसरत का शिकार हो जाएंगे और मुकम्मल तौर पे तबाही और बर्बादी इनका मुकद्दर बन जाएगी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अनएक्सपेक्टेडली जो है वो उस अजाब में गिरफ्तार हो जाएंगे जो जहन्नम के सबसे निचले गड़े में इनको मिलेगा। तो ये वो धोखा है जो ये अपने आप को दे रहे हैं। वाज़ेह हो गया जी? जी सर। यहाँ एक बात और समझ ले, ये मुनाफिकों की दो किस्में हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में, एक है अमली मुनाफिक और एक है एतकादी मुनाफिक। ये जरा फर्क कर लेना आपने। अमली मुनाफिक से मुराद है कि एक आदमी मुसलमान है लेकिन उससे निफाक के अमल सरजद हो जाते हैं, तो ये आदमी ऐसे मुनाफिकों में शामिल नहीं होता। मिसाल के तौर पर कभी ना कभी आदमी झूठ बोल देता है, कभी आदमी के मुंह से गाली निकल जाती है, कभी आदमी वादा खिलाफी कर ही लेता है, लेकिन साफ ज़ाहिर है कि ये अमली मुनाफिक कहलाएगा। एतकादी मुनाफिक है जिसके अकीदे में निफाक मौजूद है, यानी कि जो दिल से अंदर चाहता है कि इस्लाम ना फैले, इस्लाम की तालीमात वो नौज़ुबिल्लाह दुनिया से ख़त्म हो जाएं और इस्लामी निज़ाम दुनिया में बहाल ना हो। जो आदमी एतकादी अकीदे के तौर पर ये ज़हन रखता है, ऐसा एतकादी मुनाफिक, वो एतकादी मुनाफिक जो है वो क़यामत वाले दिन जहन्नम के सबसे निचले गड्ढे में होगा। जो अमली निफाक है वो थोड़ा बहुत तकरीबन हर बंदे में मौजूद होता है, किसी में थोड़ा, किसी में दरमियाना, किसी में ज्यादा, तो वो लोग इसका मिज़ाक नहीं है कि कभी झूठ बोल दिया, कभी कमी बेशी कर ली, लेकिन उनको पता है कि ये इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है, इस्लाम पे अमल करना चाहिए, लेकिन अपनी बशरी कमजोरियों के तहत, गफलत के तहत, जहालत के तहत वो ये कर बैठते हैं, तो ये लोग उसमें शामिल नहीं है।
تو اس دھوکے سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ آدمی نفاق والی چیزیں عملی بھی چھوڑ دے. اعتقادی تو چھوڑنی، عملی چھوڑنی. اور عملی آپ نے نبی علیہ السلام نے 4 بتائی ہیں. فرمایا اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. اور واذا حدث کذب، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. اور جب اس کے بعد امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے. واذا خاصم فجر، اور جب اس کو کوئی لڑائی ہو جائے تو گالیاں نکالتا ہے. تو امانت میں خیانت کرنا، اسی طرح وعدہ خلافی کرنا، گالیاں دینا، اور جب بھی بولنا جھوٹ بولنا، یہ 4 علامتوں سے آدمی کو حد الامکان بچنا چاہیے تاکہ وہ آدمی نہ اعتقادی منافق بنے نہ عملی منافق بنے. واضح ہو گیا جی سب کو؟ جی سر. اور فرمایا وما یشعرون، یہ ان کو شعور نہیں ہے، پتہ نہیں ان کو چل رہا. یہ بات پتہ ہے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. جب آپ کو شعور ہو نا تو آپ اس چیز کی ریمیڈی لیتے ہیں. بڑی سمپل سی بات ہے کہ آپ کو اپنے ہاتھ پر، آپ کے پاؤں پر کوئی چھوٹا سا نشان نظر آتا ہے، مے بھی کوئی مطلب کوئی بھی چیز نظر آتی ہے، کوئی گلٹی نظر آتی ہے، کوئی زخم نظر آتا ہے، تو صاف ہے کہ آپ فوراً ریمیڈی لیتے ہیں، اس پہ کوئی کریم لگا لیتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ نہیں لگتا، کبھی نہیں پتہ چلتا کہ میرا بلڈ پریشر یہاں تک پہنچا ہوا ہے یا میرے دل کی یہ کیفیت ہے. بتائیے، پتہ چلتا ہے آپ کو؟ سوال سمجھ آیا جی آپ کو؟ دوبارہ پوچھیے گا ذرا استاد. میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ بعض چیزیں نا انسان کو نا اس کے بازو پر یا اس کی ٹانگ پر یا اس کے پاؤں پر کوئی چیز نکل آتی ہے، کوئی پمپل سے نکل آتا ہے، کوئی دانہ سے نکل آتا ہے، تو وہ اس کی ریمیڈی کرتا ہے. میں نے یہ پوچھا ہے کرتا ہے اس لیے نظر آ رہا ہے اس کو. ٹھیک ہے کہ نہیں جی؟ بالکل بالکل. یہ اس کو شعور ہے. لیکن آپ کو پتا ہے لوگوں کو برین ہیمریج ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، کیا وہ اس کا شعور رکھتے ہیں؟ اور بہت دفعہ نہیں رکھتے نا. اچانک آدمی بیٹھا ہوتا ہے، اچانک پتہ چلتا ہے اس کو اٹیک ہو گیا. صاحب سر اٹیک والی چیز کافی عرصے سے نا اس کے جسم میں ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، لوگ اس بیچارے کو پتہ نہیں چلتا. تو یہ ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے، شعور بھی نہیں رکھ رہے یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو سمجھتے، نبی علیہ السلام کے فرمان کو سمجھتے. شعور ہوتا ہے کہ میں اپنے نفاق کو ختم کروں. اور الحمدللہ جو آپ نے یہ کلاس پڑھی ہے تو امید کی جاتی ہے کہ آپ کو اتنی آیات پڑھنے سے ہی کافی فرق پڑا ہوگا کہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا ہدایات دی ہیں. تو اس سے کیا آپ کو شعور آ گیا. جب شعور آ گیا تو صاف ظاہر ہے آپ کو پتہ چل گیا. ڈاکٹر نے جس طرح آپ کو کہہ دی نا فلاں آپ کی اللہ نہ کرے کسی کی آرٹری بلاک ہے، اس کا ٹیسٹ ہوا، اس کی ڈیکوڈنگ ہوئی، یا اس کا جو ای ٹی ٹی ہوا یا اس کا ایکو ہوا، تو پتہ چل گیا یار آپ کی نا 2 شریانے بلاک ہیں. تو فوراً بندہ شعور میں آگے نا اس کے لیے حل نکالتا ہے، چکنائی کو بند کر دیتا ہے اور دوسرے کام ایسے کرتا ہے جس کے اس کا دل بچ جائے. یہ شعور سے ہوتا ہے. اس لیے آپ ٹیسٹنگ کرواتے ہیں کہ ٹیسٹ کرواؤ بھی، سی بی سی کرواؤ، یہ جو ہوتے ہیں نا وہ جو کیا نام گلیسرائڈ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، کولیسٹرول وغیرہ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، کرواتے ساتھ ہی نا آدمی کو جب شعور آتا ہے تو فوراً اس میں اندر احتیاط پیدا ہو جاتی ہے. ایگری جی؟ جی سر. جب تک آپ کو شوگر کا اور لپڈ پروفائل کا، کولیسٹرول کا پتہ نہیں نہ ہوتا تو آپ کی زندگی غیر متوازن ہوتی. جیسے ہی پتہ چلتا ہے نا کہ مجھے یہ مسئلہ ہے تو فوراً آپ محتاط ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے آپ نے اتنا ابھی پڑھا ہے، امید ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ تو محتاط ہوئے ہوں گے. کیا خیال ہے؟ تو بس یہی اصل پیغام یہی ہے، پڑھنے والے کے لیے بھی پڑھانے والے کے لیے بھی. تو ہم اپنی لائف میں محتاط ہوں تاکہ منافقت سے بچیں، نفاق سے بچیں. اور آج کی کلاس انشاءاللہ اتنی ہی ہے.